across the world. Feel defeated, falling on your knees and looking up for some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up. You no longer have the strength to fight. You've seen too many sunsets, many days ending in the darkest night. But on your own, you never know, you never know. You move that highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, no water. You move that highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the waters. That on your knees, babe, but it's almost like you lost your way. Took a few wrong turns, took a few breaks, falling behind now, looking for grace. Cause you need someone to lift you up, yeah, make right all the things you've done. Cause on your own, you never know, you never know. Move that highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. Move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. Anything you can do, you can do anything. Move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water, the water. Move the highest mountains, cross the greatest oceans, walk across the water. All right, hi everyone. Hearty welcome to this very special event. Very good evening to each and every one of you. दिल से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस खास इवेंट में जिसका नाम है How to Become a Great Speaker. और अगर आप एक कमाल के स्पीकर बनने के लिए तैयार हैं तो मुझे जल्दी से चैट में बताइएगा I will become a great speaker. Hi, good evening, सृष्टि. ये जो चैट है ये सिर्फ मैं और मेरी टीम पढ़ सकती है. It's a private chat. So if you whatever you feel like writing, you can write on this chat. Awesome, everyone. Fantastic. So happy to see each and every one of you here. So happy to see each and every one of you here. Right. Mahesh from Pune, Shrishti. Hi, Shrishti. First time you are attending. How many of you are attending this event first time? Like मेरे साथ आप पहली बार live event में हैं. Just say your name if you are first time with me in an event. Hi, Mehul, Sanjay, Prahlad. Oh, Prahlad, first time. Satyajit. Anybody who is attending an event with me for the first time? First time, Mahesh. Hi, Chintan. So good to see you. Hi, Saroj. Chintan, you remember the 2 tasks I have given you for Delhi Train the Trainer, right? Hi, Himlata, Bhanu, Khushbu, first time. Fantastic. Okay, Jyoti Kaur, first time. Devendra, first time. Jayesh, Jane, first time. Leena Shrivastava, first time. So happy, so happy to have all of you. Hearty welcome to this event. Fantastic. Just give me a second. Yeah, something's. Manoj, you cannot be first time, yeah? You have been coming all the time. Naveen, first time coming today. Fantastic. All right, friends. Hearty welcome once again to this event. The title of the event is very simple today. How to be an effective speaker and trainer. आप एक कमाल के स्पीकर और ट्रेनर कैसे बन सकते हैं, राइट? जितने दोस्तों ने अभी ज्वाइन किया है आप सबके लिए मैं बता दूं, ये जो चैट है ये चैट प्राइवेट चैट है, ये सिर्फ मैं यहाँ देख सकता हूँ, कोई और नहीं देख सकता है. तो अगर आप मुझे कोई भी बात कहना चाहें तो वी हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद ईच अदर टुडे थ्रू दिस
chat, right? So use this opportunity. Fantastic. All right. Let's get started. So all the people who have just joined in, so this private chat is there. आपके कोई भी सवाल होंगे मैं कोशिश करूंगा आपके उन सवालों को मैं ले पाऊं और पिछले 20 साल से I have been into speaking and training, coaching, speaking, training. Maybe 2 million people or more I have worked with. Somewhere coached, somewhere trained, somewhere online, offline, from 50 plus different countries. It's my privilege and honor to serve you today. और मेरे 20 सालों के स्पीकिंग करियर के दौरान एक एक करके धीरे धीरे मैंने 9 चीजें ऐसी समझी हैं जो एक स्पीच को कमाल की इफेक्टिव स्पीच बनाती है। सो और आज मैंने आज तक किसी और इवेंट में इन 9 चीजों को एक साथ इस फॉर्मेट में कभी शेयर नहीं किया। For the first time in my life, I'll be publicly sharing all those 9 things with each and every one of you, and I'm very, very happy, very excited about it. Fantastic. All right. So, ये सारी की सारी 9 चीजें एक एक करके मैंने मेरे जीवन में उतारनी शुरू की, अपनी स्पीचेस में डालनी शुरू करी, and then my speeches became powerful, effective. People started getting amazing results from this, and we started getting the transformation. Right. So this is how I started. This photo is 2001. जो लेफ्ट में फोटो है वो 2001 की है। मैं MBA की तैयारी किया करता था दिल्ली में। सिरसा से मैंने BCom किया और MBA करने के लिए मुझे मणिपाल जाना था। ओके, तब तक मैं CAT की तैयारी कर रहा था। ये तब की फोटो है। Then I got into my job, TVS Motor Company. This photo is from Meerut. मेरठ में मैं वेस्टर्न यूपी में सेल्स एंड मार्केटिंग देखा करता था, डीलर सेल्स, एंड दिस फोटो इज माय फर्स्ट ट्रेनिंग इवेंट दैट आई डिलीवर्ड. दैट दिस इज आई थिंक प्रतीक इज देयर, ही कैन टेल मी द फाइनल डेट, द एग्जैक्ट डेट, बट आई थिंक फरवरी 2019 से हमारा पहला इवेंट हुआ था, लॉन्च योर ड्रीम्स, व्हेन आई लॉन्च्ड आवर ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग कंपनी. सो इन 3 फोटोज के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे हुआ और कौन सी 9 चीजों को मैंने पकड़ के रखा और उन 9 चीजों पे मैंने लगातार काम किया. तो 2001 से 2023, ये 22 सालों के दौरान मैंने जो 9 चीजें समझी हैं जो एक स्पीकर को कमाल का स्पीकर बनाती हैं, ग्रेट लीडर बनाती हैं, उसकी ट्रेनिंग को इफेक्टिव बनाती हैं, वो सारी की सारी आज मैं आपसे अगले 1 घंटे भर में शेयर करूंगा. और यकीन मानिएगा 20 साल का एक्सपीरियंस है, आप 22 भी बोल सकते हैं. एक्चुअली बोलूं तो 4 किताबें 9 लैंग्वेजेस में हैं, 2 मिलियन ट्रेनीज हैं और सोशल मीडिया पे 260 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं. ये सारा का सारा इसका जो निचोड़ है, ये एवरीथिंग आई विल बी शेयरिंग विद यू इन नेक्स्ट 60 मिनट्स. वेरी टफ एक्चुअली, बट आई नो आप लोग मेरे साथ इस समय इस इवेंट में हैं, तो यू गाइज आर रियली रियली कमिटेड, और जो मैं दूंगा आप जल्दी से लेने के लिए रेडी होंगे. आप में से किसी को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है. यू नो, ऑल यू गाइज आर ऑलरेडी मोटिवेटेड. You guys are already committed. You guys need some direction, some guidelines, some insights and strategies. I'll be sharing that with you. If you feel, if you are already motivated, और अगर आप ये बोलते हैं कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, तो मुझे जल्दी से बताइएगा, कमेंट में लिख के आपका नाम, and I will do whatever it takes. Right? Thank you, Jayesh. Appreciate it. Let me write it first of all. Deepak Bajaj. I will do whatever it takes. आप देखना मेरा चैट मिला आपको. बालाजी शेट्टी है, appreciated. मेहुल, ओके, देवंगन, विमेंद्रा देवंगन, अर्चना जादव, महेश, स्वाति, आकाश, यल्लप्पा, सरोज, नितिन सतीजा. चैट थोड़ी तेज चल रही है. हाय स्वागत, so good to see you. स्वागत आप. भानु, चिंतन, जयेश, राघवेंद्र सिंह, जाहिर, सुलोचना, मनदीप, किरण, फैंटास्टिक, यल्लप्पा, जेनलिन, भाविक, किसी का नाम अगर मैं गलत बोल दूं तो माफ करिएगा. मनोज खुटले, देन वी हैव ज्योति कौर, सरोज कुमार, संदीप धनवनी, आकाश कुमार पटेल. फैंटास्टिक है. So happy to see each and every one of you. So excited. Leena Srivastava, hundreds of people from so many different countries, they have joined us today in this event, and we will do amazing stuff. To the point बात करेंगे, सीधी बात करेंगे, 9 कंपोनेंट्स की बात करेंगे. आप नोट्स लेने के लिए रेडी रहिएगा. और
हर्ष आहिर गुजरात सोमनाथ से, फैंटास्टिक हर्ष। भक्ति, आई विल डू व्हाटएवर इट टेक्स, फैंटास्टिक भक्ति। मेरी तरफ से मैं जान लगा दूंगा भक्ति और आप सब लोगों के लिए 9 चीजें जल्दी जल्दी 5-5 मिनट में एक पॉइंट को कवर करेंगे, देन वी कैन कवर इट इन 45 मिनट्स शार्प। राइट, फैंटास्टिक। इससे पहले कि मैं आपको वो 9 चीजें बताऊं जो मैं खुद यूज करता हूं और जो मुझे लगता है बेहद जरूरी है, 3 बातें आपको जरूर समझनी चाहिए। नंबर 1, a good speech is not about you, it's about them. हमेशा याद रखिए, a good speech is not about you, it's about them. कोई भी जो स्पीच होती है ना, वो आपके बारे में नहीं है, उनके बारे में है। आपने कितनी अच्छी बातचीत की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कितनी बात समझ आई उससे फर्क पड़ता है। इट्स अबाउट देम मीन्स इट्स अबाउट योर ऑडियंस, राइट। एक स्पीच तब खत्म नहीं होती मेरे दोस्त जब आप बोलना बंद कर देते हैं। स्पीच तब एक्चुअली खत्म होती है जब आप अपनी बात को अपनी ऑडियंस तक इफेक्टिवली सही तरीके से पहुंचा पाते हैं। नंबर 2, एक अच्छा स्पीकर और एक अच्छा लीडर बनना जिंदगी के हर क्षेत्र में कामयाबी की पहली रिक्वायरमेंट है। वेयरएवर यू आर राइट नाउ, आप एक टीचर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, दुकानदार हैं, प्रोफेशनल हैं, नेटवर्क मार्केटर। अगर कोई नेटवर्क मार्केटर यहाँ बैठा, आप 1 इंच सरक नहीं सकते अगर आप एक कमाल के स्पीकर या लीडर नहीं है तो। पूरी जिंदगी आप बड़ी पोजीशन, बड़ा रैंक, बड़ी इनकम नहीं कमा सकते। कहीं पे भी आप मैनेजर हैं, बैंक में बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, लेकिन मैनेजर कौन बनता है? जिसकी पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप और कम्युनिकेशन अच्छी होती है। अपनी जॉब में अगर किसी को भी ग्रो करना हो, यू नीड पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। डॉक्टर अगर आप हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर एब्सोल्युटली एसेंशियल, वेल्थ एडवाइजर, इसके बिना आप सांस भी नहीं ले सकते। इट्स लाइक ऑक्सीजन फॉर नेटवर्क मार्केटर्स, इंश्योरेंस एडवाइजर्स, वेल्थ एडवाइजर्स, एनीबडी, हेल्थ कोच सिटिंग हियर राइट नाउ, हेल्थ कोचेस के लिए, वेल्थ कोचेस के लिए, रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए, लाइक anywhere you are, my friend. At, if you want to grow, then public speaking, communication, leadership, this is like absolutely important. जॉब मिलेगी, इंटरव्यू में अच्छा करोगे अगर तब, और जब जॉब मिल जाएगी बाकी सब लोग अपने बाकी सारे काम करेंगे, लेकिन जॉब में प्रमोशन किसको मिलेगी? उसको जो बाकी लोगों के साथ में टीम वर्क में काम कर सकता है और उनके थ्रू काम करवा सकता है। सो आप मुझे नहीं मालूम आप जिंदगी में अभी क्या क्या कर रहे हैं, किस किस फील्ड में हैं, क्या क्या काम करते हैं। आपकी डिग्रीज, जितनी भी डिग्रीज आपने ऑलरेडी ली हैं, जितना भी वर्क एक्सपीरियंस आपने ऑलरेडी लिया है, इसमें अगर आपने पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप और कम्युनिकेशन को ऐड कर दिया, इट्स अ अनस्टॉपेबल कॉम्बो। आई मीन इट विल मेक यू अनस्टॉपेबल। इट्स सो अमेजिंग एंड पावरफुल। सो 3 चीजें हमेशा याद रखना इस पूरी स्पीच के दौरान और पूरी बातचीत के दौरान। और नंबर 1 इज स्पीच। अच्छी स्पीच की एक ही परिभाषा है, एक ही, आप चाहें तो निशानी बोल लें या जो आप बोलना चाहें, कि आपने अपनी बात को इफेक्टिवली सामने वालों तक पहुंचा दिया या नहीं पहुंचा दिया। नंबर 1। नंबर 2, आप जिंदगी में आज किसी भी फील्ड में हो, कहीं पे कुछ भी करते हो, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप एम्प्लॉई है और मैनेजर बनना चाहते हैं, आपका स्टार्टअप है, आप अपनी टीम बना के उसे लीड करना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटर है, डॉक्टर, इंश्योरेंस एजेंट, वेल्थ एडवाइजर, हेल्थ कोच, wherever you are, if you want to grow, you need to be a good speaker and leader. And number 3 is very amazing, very powerful. आपके लिए उम्मीद की किरण है ये। Good public speaking is a learnable skill. तो दुनिया में जितने भी ग्रेट स्पीकर्स हुए हैं, वो ग्रेट स्पीकर पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया था कमाल की स्पीचेस देने के लिए। राइट, सो always remember this. अगर आप इन तीनों बातों से एग्री करते हैं तो जल्दी से मुझे यस करके बताइएगा। If you agree to all these 3 things, tell me yes in the comment. Fantastic. Appreciate people who are participating and writing. Kiran, Akash, Devil, Sunil Kumar Yadav, Leena Srivastava, Yelappa, SK Raj Ali, राकेश सवरिया, सुरेश श्रीवास्तव, मनोज कुतले, भाविक, जयेश भारती, fantastic. I really appreciate Jayesh Jain, Devendra Singh, fantastic. So 3 things before we start. You guys agree to this? Let me bring you straight to this 9 things. और ये 9 की 9 एक दिन में नहीं मिली है, धीरे धीरे करके मिली है, आपको एक साथ दे रहा हूँ। तैयार हो जाइए, राइट।
my core 9 things, my 22 years of experience poured into 45 minutes, 9 points ready for you. बहुत बढ़िया. हर्ष आहिर, करुणा यादव, तुषार साविलिया, भाविक. मैंने सिल्विया नाक्टिल को भी देखा था, right? Sylvia is also there. Our old friends, lot of them are there already. Chintan is there, Swagata David is there, Bhavik Barat. Yeah, Sylvia, hi, so good to see you. Fantastic. चलिए. Number one is very, very important, my friends. Real value adding content. You know, 99% of the speakers, maybe 100% of the speakers I have seen, वो stage पे बिना तैयारी के पहुंच जाते हैं. अगर आप सच में अपनी ऑडियंस की रिस्पेक्ट करते हैं, देखिए मेरे कोच से मैंने सीखा है, टोनी रॉबिन्स हमेशा एक चीज बोलते हैं, किसी ने अगर आपको मौका दिया है स्टेज पर जाने का और अगले कुछ मिनट और घंटे अगर वो आपकी बात सुनेंगे, they have trusted you with their time, sometimes with their money, then you have a responsibility to deliver. Very simple, बहुत सरल है. अगर लोग आपको अपना समय दे रहे हैं, अगर लोग आपको अपनी अटेंशन दे रहे हैं, तो फिर ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है कि आप 5 या 15 या 50 मिनट जितने भी उन्होंने दिए हैं, उन मिनटों के अंदर आपको कमाल का एक्सपीरियंस डिलीवर करना चाहिए. और आप कमाल का एक्सपीरियंस तब डिलीवर कर पाएंगे जब आप कमाल का कंटेंट तैयार कर लेकर जाएंगे, राइट? तो आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए अपनी स्पीच को बेहतर बनाने के लिए. आप में से कोई ऐसे हैं जिनको पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है? एनीबडी फेसिंग स्टेज फियर, डाउट, हेजिटेशन, nervousness? Okay, Manila is saying yes, Jayesh is saying yes, Taruna is saying yes. Everybody will say yes, right? I tell you a formula today. I have not, let me write it also for you guys here. Kamal Kishore, appreciate your honesty. Really appreciate your honesty. If you guys feel आपको nervousness होती है, डर लगता है, doubt होता है, confidence कम होता है, then prepare करिए, तैयारी करिए. देखो, जैसे जैसे तैयारी ऊपर जाती है ना, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है और आपकी डर, डाउट, हेजिटेशन, नर्वसनेस, ये सारी नीचे आने लग जाती है. इट्स वेरी सिंपल. जैसे जैसे आपकी तैयारी बढ़ेगी और बेटर होती चली जाएगी, वैसे वैसे आपको डर कम लगेगा, डाउट कम लगेगा, नर्वसनेस कम होगी. सो वर्क हार्ड एंड प्रिपेयर वेल फॉर एवरी सिंगल इवेंट, एवरी सिंगल इवेंट. So I was reading a book on war tactics. जंग में कैसे कैसे लड़ाइयाँ होती हैं, तो कैसे तैयारी करते हैं. तो उसमें एक बात कही गई, जो फौजी तैयारी में जितना पसीना बहाता है, जंग में उतना ही कम खून बहता है. आपकी जो ये जंग है उसमें खून नहीं बहेगा, लेकिन आप पैसे का नुकसान करेंगे, आपकी लीडरशिप कम हो जाएगी. अगर आपकी स्पीच इफेक्टिव नहीं है ना, पहली बार लोग आपको चांस दे देंगे, दूसरी बार चांस दे देंगे, लेकिन तीसरी बार उठ के जाना शुरू कर देंगे आपके हॉल. आप देखिएगा किसी भी प्रोग्राम में आप जाएंगे ना, कुछ स्पीकर्स होते हैं, जैसे ही वो आते हैं लोग पीछे से उठ के जाना शुरू कर देते हैं. आप जब सेल्स मीटिंग के लिए, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सेल्स के लिए लोगों के घर पे जाते हैं, उन्हें कुछ प्रोडक्ट्स पिच करते हैं. आप यू आर इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस और एनीथिंग यू नीड टू सेल, राइट? आप किसी भी कंपनी में सेल्स जॉब में है, right? If you have prepared well, then you have money, promotions, income, incentives, bonuses, everything flowing into you. So prepare well. ऐसा बोलते हैं, content is not king, content is entire kingdom. ऐसा. कंटेंट में क्या क्या चीजें तैयार करनी होती हैं? आपकी ओपनिंग जबरदस्त होनी चाहिए. मेन कंटेंट जो कोर है आपका, जो आपके इवेंट का थीम है, उस पर आप खूब मेहनत करिए और फिर कमाल की क्लोजिंग होनी चाहिए. जब आप मेरे साथ आएंगे पब्लिक स्पीकिंग या ट्रेन द ट्रेनर वर्कशॉप में, तो हम करीब हाफ डे लगाते हैं इन 3 चीजों पे और इसके अलावा कंटेंट वाले पोर्शन पे. सो ओपनिंग, मेन कंटेंट और क्लोजिंग. ओपनिंग ऐसी हो कि आप उसका दिल जीत लें और वो आपकी बाकी बातें सुनने के लिए तैयार हो. जब आप कंटेंट पे जाएं तो अपनी सारी बातों को, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, उनको आप एग्जाम्पल्स के साथ, एनेक्डोट्स के साथ, स्टेटिस्टिक्स के साथ ठीक से उनके दिल में उतारें. और जब आप क्लोजिंग करें तो जो बातें आपको लगता है आपकी ऑडियंस को हमेशा याद रहनी चाहिए, वो सारी बातें आपको उनके साथ दोबारा से लास्ट में क्लोजिंग में दोहरा देनी चाहिए. वेरी सिंपल. ओपनिंग कैसे कर सकते हैं आप?
किसी कमाल के नंबर्स के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ आप ओपनिंग कर सकते हैं, या फिर कोई एक प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करने वाले हैं, उससे आप ओपनिंग कर सकते हैं, किसी स्टोरी से ओपनिंग कर सकते हैं आप. दीज आर वेरी गुड ओपनिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गो टू अ कॉन्फ्रेंस जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग के, एफिलिएट मार्केटिंग के, डिजिटल मार्केटिंग के लोग हैं जिनको लीड्स चाहिए, दे नीड प्रॉस्पेक्ट्स, कस्टमर्स. आप में से कोई हेल्थ कोचेस हैं, वेल्थ कोचेस हैं, आपको क्लाइंट्स चाहिए. तो मैंने कहा कि एक ओपनिंग आपको बोलता हूं. फेसबुक पे हिंदुस्तान में 34 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं. अगर एक सिंगल मोबाइल ऐप में, जिसको आप अपने फोन से एक्सेस कर सकते हैं, अगर 34 करोड़ लोग एक्टिवली उसे यूज करते हैं, तो फिर मेरे दोस्त तुम्हारी लिस्ट खत्म नहीं हुई है. तुम्हें फेसबुक का यूज करना नहीं आता लीड जनरेशन के लिए. अगले 30 मिनट अगर आप मेरे साथ देंगे और अगर आप एक्टिवली अटेंशन के साथ, कंसंट्रेशन और फोकस के साथ बैठेंगे, तो अगले 30 मिनट में मैं आपको सिखा सकता हूं कैसे बनाएंगे आप नेवर एंडिंग लिस्ट फेसबुक के माध्यम से. ये मेरी ओपनिंग हो सकती है. ऐसे दुनिया भर की ओपनिंग्स हो सकती हैं. आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. ओपनिंग इज वेरी पावरफुल. पिछले कुछ सालों में लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया. तो लोग पहले 2-3-5 मिनट में ये डिसाइड कर लेते हैं आपकी बात सुननी है पूरी बात या नहीं सुननी है. तो आपकी ओपनिंग जबरदस्त हो, मेन कंटेंट कमाल का हो, और फिर क्लोजिंग मेमोरेबल होनी चाहिए. स्टोरीज यूज करिए, एग्जांपल्स यूज करिए, कोट्स यूज करिए, स्टैटिस्टिक्स यूज करिए, but give a real value adding content to people, right? If you love your people, if you respect your audience, then you need to give them value, right? पूरा जान लगा दो. So this is number 1. So 9 चीजें मैं बताने वाला हूँ. पहली बता चुका हूँ, अगली 8 के लिए तैयार हो जाइएगा. सब बोलते हैं ना, कुर्सी की पेटी बांध कर बैठिएगा. हम लोग टेक ऑफ करने वाले हैं. 22 साल का तजुर्बा है, 2 मिलियन लोगों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, 260 मिलियन, करीब 26 करोड़ व्यूज हमारे पास सोशल मीडिया पे हैं, और उसका निचोड़ मैं आपको दे रहा हूं. नंबर 2, रिहर्सल्स वेरी पावरफुल. रिहर्सल इज द मोस्ट अंडररेटेड एस्पेक्ट ऑफ एनी ग्रेट स्पीच और ट्रेनिंग. लोगों को लगता नहीं मुझे तो सब आता है यार, मैं क्यों रिहर्सल करूं. एक बार कर लेते हैं, 2 बार कर लेते हैं. आपको जितना हो सके रिहर्सल करना चाहिए, और उसके बाद थोड़ा और रिहर्सल करना चाहिए. दैट इज माय रिकमेंडेशन टू यू. रिहर्सल्स आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. बेस्ट वे क्या है रिहर्सल करने का? स्मार्टफोन लीजिए, ट्राइपॉड लीजिए. स्मार्टफोन आपके पास है, ट्राइपॉड नहीं है तो आप खरीद सकते हैं. 500-700 रुपए में, 1000 रुपए में यू विल गेट अ गुड ट्राइपॉड. उस ट्राइपॉड को आई लेवल के साथ सेट करके लगाइए, राइट. स्पीच दीजिए, अपनी खुद की स्पीच को मोबाइल में आप रिकॉर्ड करिए, स्पीच को दोबारा सुन लीजिए. दैट बिकम्स योर रिहर्सल. कौन कौन सी चीजें आपको रिहर्सल में चेक करनी चाहिए? टाइमिंग आपको जरूर चेक करना चाहिए. ओपनिंग, क्लोजिंग, मेन, कोर कंटेंट आपने सही से डिलीवर किया या नहीं किया. कुछ फालतू डिलीवर नहीं कर दिया, कुछ फालतू तो डिलीवर नहीं कर दिया, और कुछ जरूरी था जो आप बताना भूल गए, वो आपको चेक कर लेना चाहिए, राइट. टाइमिंग, द कंटेंट. थर्ड इज मे बी यू कैन चेक इस स्पीड, जो आपकी स्पीच है, जो आप बोल रहे हैं जिस तरह से शब्दों को, क्या वो सही तरीके से आप बोल रहे हैं, राइट. बहुत सारे लोगों बोल देते हैं, लेकिन उनकी स्पीच में, वॉइस में कुछ मॉड्यूलेशन नहीं होता, इमोशंस नहीं होता, जान नहीं होता. अगर आप पूरी बातचीत को एक ही सुर में, एक ही तरीके से बोलते चले जाएंगे ना, तो ऑडियंस की अटेंशन नहीं ले पाएंगे. वॉइस मॉड्यूलेशन एक ऐसी कमाल की चीज है जिसे अगर आपने लगातार ठीक से यूज करना शुरू कर दिया, तो आप बहुत कमाल का इफेक्टिव रिजल्ट अपनी स्पीच के माध्यम से निकाल सकते हैं. देखिए मैंने क्या किया, पिछले 30 सेकंड में मेरी आवाज को थोड़ा ऊंचा किया, थोड़ा कम किया, स्पीड को, मेरे जो स्पीड है उसको थोड़ा कम ज्यादा किया, और बीच में कुछ पॉज लिए मैंने. ये जब आप सीखते हैं ना, फिर आपकी स्पीच में मास्टरी आने लगती है. अभी के लिए मैं इतना ही बता पाऊंगा जूम सेशन पे. बाकी आपको जब आप मेरे साथ पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप में होंगे, फिर हम वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट्स लॉन्ग कॉन्सेप्ट. बट जब आप रिहर्सल करें तो आपको ये चेक करना है कि आपका टाइमिंग सही है या नहीं है, वॉइस मॉड्यूलेशन, स्पीच जो आप बोलना चाहते हैं वो सही से बोल पा रहे हैं, इसकी इफेक्टिवनेस है या नहीं. तो ये सब आपको रिहर्सल में चेक करना चाहिए, राइट. 2. Number 3, this is absolutely important.
अर्न द ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ योर ऑडियंस, ये बहुत जरूरी होता है। किसी ऑर्गेनाइजर ने आपको बुला लिया और आप वहां स्टेज पर चले गए, लेकिन शायद वो ऑर्गेनाइजर आपको जानते हैं लेकिन ऑडियंस आपको शायद नहीं जानती है, और अगर वो जानती भी है तो पहले 2 4 5 10 मिनट में वो ये जज कर लेते हैं कि आपसे बात कितनी देर तक सुननी है, कितना लंबा आपके साथ में जाना है। तो यू नीड टू अर्न दैट क्रेडिबिलिटी फ्रॉम योर ऑडियंस, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। लोगों का आप पे भरोसा होना चाहिए। आप सिर्फ बोलना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बोलने के बाद लोग कुछ नया सोचें, लोगों की धारणा बदले, उनका भरोसा बदले, उनकी राय बदले और शायद वो कोई नया डिसीजन लें। राइट? कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? आप जब भी किसी को कोई स्पीच देते हैं, राइट, जब भी आप कोई बात करते हैं, आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है, यू वांट पीपल टू थिंक एंड एक्ट in a particular way after you finish your speech. How many of you agree to this? Read this, whatever I have just written. Like, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग किया करता था तो मेरी स्पीच के बाद क्या उद्देश्य होता था? जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो सब लोग हमारी टीम का हिस्सा बनने चाहिए। जब मैं टीवीएस मोटर कंपनी में डीलर्स को एड्रेस किया करता था, 4 साल मैंने जॉब किया है, तो मेरा क्या उद्देश्य होता था? जो मैंने कॉन्टेस्ट दिया है, जो हम नया टारगेट दिवाली पे लोगों को देना चाहते हैं, लोग उस टारगेट को एक्सेप्ट करें, अचीव करें। मेरे बच्चों को मैं स्पीच देता हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, उन तीनों को जब मैं कोई भी बात सिखाता हूँ, उन्हें कोई भी बात बताता हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होता है कि मेरे बच्चे मेरी बात सुनकर शायद सोशल मीडिया एडिक्शन या स्मार्टफोन एडिक्शन को कम करने चाहिए, वो शायद फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करने चाहिए, अपने गोल्स के लिए और अच्छा काम करने चाहिए। तो ऑल द टाइम वी आर स्पीकिंग, ऑल द टाइम। एंड इफ यू वांट पीपल टू टेक एक्शन, और अगर आप चाहते हैं लोग एक्शन लें आपकी स्पीच सुनने के बाद, तो फिर वो तब होता है जब आप लोगों का भरोसा जीतते हैं। ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, दिस इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट। ये आपको जीतनी आनी चाहिए। वैसे तो ये लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन अभी के लिए आपको बताऊं, आप उन्हें अपने जीवन के बारे में कुछ चीजें बताइए जिनसे वो रिलेट कर पाए। जब लोग आपकी बातें सुनते हैं, राइट, आपके जीवन के बारे में जानते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आप भी उन सब हालातों से, उन स्थितियों से गुजरे हैं जिनसे वो गुजर रहे हैं, आपको फिर वो आपको अपने जैसा मानने लगते हैं, और एक बार अपने जैसा मान गए फिर बात बन जाती है। तो देन यू कैन बिल्ड अ बॉन्ड विद देम, राइट। और आप जब तैयारी जबरदस्त करके आए होते हैं और आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है ना, दैट ऑल्सो गिव्स यू लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। आई मीन, एक हाउ डू आई गिव एन एग्जांपल, एक डॉक्टर हैं, वो सर्जरी करने वाले हैं, हार्ट सर्जरी है, हार्ट में कुछ स्टंट डलेगा और समथिंग दे विल डू। यू अलाउ समबडी टू कट योर बॉडी, रीच आउट टू योर हार्ट। व्हाई यू डू दैट? बिकॉज द डॉक्टर हैज बिल्ट अ ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी विद यू, राइट। मतलब आप अपनी जान या अपने अपनों की जान किसी डॉक्टर के हाथ में क्यों देते हैं? बिकॉज दे हैव बिल्ट ट्रस्ट विद यू। तो अगर ट्रस्ट हो जाए किसी पे, तो हम अपनी जान उनके हाथ में दे सकते हैं। आपको तो जान मान नहीं लेनी है और जान मान देनी नहीं है, आपको तो खाली एक प्रोडक्ट सेल करना है या फिर एक आइडिया सेल करना है, और या फिर अपने क्लाइंट्स को कुछ बेटर सॉल्यूशंस देने हैं। तो क्यों लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे? सो यू नीड टू अर्न ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी फ्रॉम योर ऑडियंस। 2 चीजों से आती है, सब्जेक्ट नॉलेज, आपकी एक्सपर्टीज, आपकी पकड़, और रियल लाइफ इंसिडेंट जब आप वहां शेयर करते हैं, तो दैट ऑल्सो builds your trust and credibility. 3 चीजें मैंने बता दी हैं। Now we are so quickly revise. Number 1 is real value adding content. If somebody has joined late, so let me write this for you guys. Real value adding. Number 2 is very simple, rehearsals. I love writing actually, so that's why I'm writing rehearsals. Okay. And number 3, earn trust and credibility from your audience. Love you guys. You guys are awesome. Thank you so much. Let's go to number 4. It's very important. हर पल आपकी आंखें ना ये चेक करनी चाहिए कि ऑडियंस की एंगेजमेंट कैसी चल रही है, और उसके अनुसार कुछ बातें आपको ज्यादा बोल देनी चाहिए, कुछ बातों को डिलीट कर देना चाहिए, कुछ स्टोरीज सुना देनी चाहिए, कुछ जोक्स को अवॉइड कर देना चाहिए। यू नीड टू
You need to be with your audience all the time, all the time. Audience की pulse होती है ना, नाड़ी तुम्हारे हाथ में रहनी चाहिए ऐसा. You need to gauge audience engagement all the time. You need to keep, आप हमेशा ऑडियंस से फीडबैक्स लेते रहिए. जस्ट कीप गेटिंग फीडबैक्स फ्रॉम योर ऑडियंस. और आप जिस स्पेस पे चल रहे हैं, क्या आपकी ऑडियंस भी आपके साथ उस स्पेस पे चल रही है? तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं. और अगर आपको लग रहा है उनको बात समझ नहीं आ रही है, उनके चेहरे पे थोड़ा आपको लग रहा है लोग हैरान है, परेशान है, बात जम नहीं रही है, एक दो और उदाहरण देने की जरूरत है, किसी पॉइंट को और इलैबोरेट करने की जरूरत है, शायद आपको थोड़ा और स्लो हो जाने की जरूरत है. दैट अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू डेवलप, माय फ्रेंड. आई मीन दिस इज लाइक, पहला तो है कि आपकी नर्वसनेस खत्म हो, डाउट खत्म हो, हेजिटेशन खत्म हो. दूसरा है कॉन्फिडेंस अच्छा हो. तीसरा है डिलीवरी कमाल की हो. चौथी लेवल है, ये प्रो लेवल है, जिसपे हम आपको धीरे धीरे लेके जाते हैं. राइट, that you need to be able to gauge it. एक word है जो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, she always uses this, that your eyes should become X-rays. X-rays, आपकी आंखों से कुछ छूटना नहीं चाहिए. Your eyes should become X-rays. So you should gauge people's participation. आपने सवाल पूछते रहिए बीच बीच में. People will raise hands. अब पहले 2-3 सवाल आपने पूछे तो मे बी 40 लोगों की ऑडियंस थी, उसमें से 8 लोगों ने हाथ खड़ा किया. अब 1 हाथ खड़ा है, 2 हाथ खड़ा है, या तो तुमने सवालों में कुछ गड़बड़ किया, आई डोंट नो, या फिर people are losing interest. So you need to gauge people's audience and accordingly work. People's attentiveness, people's interest. किस तरह के सवाल लोग पूछ रहे हैं. Eye contact, eye movement. हॉल में लोग कुछ स्पीचेस ऐसी होती हैं 1.5 घंटा कब हुआ पता भी नहीं चला, और एक भी इंसान हॉल छोड़कर नहीं जाता. धीरे धीरे पिछली कुर्सियों से लोग उठना शुरू कर देते हैं. ये सब क्या है? ये सब ऑडियंस की एंगेजमेंट के signals हैं, pulse हैं. So a good speaker, some people they don't even know, they will just continue speaking. बस वो एक मोनोटोन में एक बस बोलते चले जाएंगे, मोनोलॉग के जैसे, बिना ये देखे कि सामने वाले को बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है. So if you want to become a great speaker, you need to become great at gauging your audience engagement all the time. Right? Okay, people are clapping or not clapping? People are responding or not responding? Are they saying yes? When you say yes, do they say yes? So you need to become smart here, right? So make your eyes X-ray, your whole body all the time. आप बात भी कर रहे हैं, ऑडियंस का फीडबैक भी ले रहे हैं. कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? लोग बता देते हैं यार, ऑडियंस बता देती है, आप सुनने वाले होने चाहिए. It's really really important, right? Fantastic. Really appreciate people who are participating. Mahesh, Pemendra, Nitish Kumar, Khushbu Singh, Bhanu Pathak, Jayesh Jain, thank you so much. I appreciate you guys. I love you all. Manoj, Naveen, Sakina, Yallappa, Chintan, right? Agree. Fantastic. We are almost halfway through. Leena Srivastava. Number 5. Number 5 is really important: games and activities. Games and activities. The goal is a deep understanding of your message by your audience and not just talking. So goal is very simple, my friend. और आपको ना, मेरी लाइफ का लॉजिक बहुत सिंपल है यार. आप जिंदगी में जो करना है करो, लेकिन हमारी ऑडियंस को बात समझ आनी चाहिए. ऑडियंस आपके साथ होनी चाहिए. इट शुड बी सो पावरफुल लाइक दैट. जब आप गेम्स और एक्टिविटीज के साथ में काम करते हैं ना, और हर एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बाद या हर आधे घंटे के बाद अगर आप कोई काम करने लगते हैं, कुछ गेम्स कराते हैं, एक्टिविटीज कराते हैं, सो ऑडियंस की एंगेजमेंट सीधी सीधी बढ़ जाती है, पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, और आपको कमाल के परिणाम मिलते हैं. आई मीन आई हैव सीन इट ऑल द टाइम. और इससे भी बड़ी बात, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग NLP नाउ सिंस 2015. तो 8 साल हो गए मुझे. मेरा पहला सर्टिफिकेशन मैंने किया था अप्रैल 2015 में. So now we are sitting in July 2023, 8 years now. From John Grinder to best of the best in NLP. I have got best of the best trainings. और ये सब मैं आपको दूंगा भी सही जब आप ट्रेन द ट्रेनर वर्कशॉप में मेरे साथ आएंगे. बट हमें सिखाया गया इस बात को कि ऑडियंस सीखने के लिए तैयार है ना, तभी आप सिखा सकते हैं. उनका इमोशनल स्टेट आपको अप करना है.
नो उनको एक पीक परफॉर्मेंस स्टेट में लेकर आना है, देन ओनली वी कैन परफॉर्म, वी कैन गेट थिंग्स फ्रॉम देम, राइट। मैंने मेरे घर पे देखा है, मेरी मम्मी जब डोसा बनाती है ना, तो डोसा बनाने से पहले ना वो पानी लेती है ऐसे और तवे पे डालती है, लाइक दैट। शायद आपके यहाँ पे भी चिल्ला बनाते समय या डोसा बनाते समय ये होता होगा, लाइक दैट। तो इट्स हर वे ऑफ टेस्टिंग कि जो तवा है जिसपे वो डोसा बनेगा, क्या वो बाटर डालने के लिए तैयार है या नहीं। So you need to put your audience in the best emotional state. उनका दिल जीतिए, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी बनाइए, रैपो बिल्ड करिए, कमाल का कंटेंट दीजिए, कमाल की ओपनिंग से काम शुरू करिए, एंड गेम्स और एक्टिविटीज को यूज करते हुए आपको अपनी ऑडियंस की इमोशनल स्टेट को अप करना चाहिए। When people are, when people are emotionally pepped up, then they will learn everything, right? तो वो ज्यादा सीखते हैं, बेहतर सीखते हैं, कमाल के परिणाम आते हैं। तो ये ट्रेनर ऐसा नहीं बोल सकता। आई हैव सीन सम ट्रेनर्स, आपने भी कोई ऐसा आदमी देखा तो मुझे बोलना, ऑडियंस अच्छी नहीं थी, वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। हैव यू सीन समबडी से लाइक दिस? वो स्पीकर स्टेज से उतरते हैं या छोटे पोडियम से उतरते हैं और बोलते हैं ऑडियंस बड़ी बेकार सी थी यार, मतलब ऑडियंस उतनी अच्छी नहीं थी, लोग उतने इंटरेस्टेड नहीं थे। मेरे दोस्त, माय पॉइंट इज वेरी सिंपल माय फ्रेंड, अगर ऑडियंस अच्छी नहीं थी तो फिर वो आई क्यों थी आपके पास? They have not come, you are not a comedian or stand-up comedian, or you have not gone there to do some time pass there. I mean, आप वहाँ गए थे, लोगों ने आपको समय दिया, लोग आपकी बात सुनने के लिए आए। Now you cannot say कि audience was not serious, audience was not this, audience was not that. No, that's not true. The fact is you failed as a trainer and speaker. आप fail किए हैं as a speaker and trainer. A good speaker has a responsibility. मेरे को किसी ने, मैं सूरत गया और मुझे सूरत में बुलाया गया एक इवेंट डिलीवर करने के लिए। कल मैं हूँ ग्रेटर नोएडा में, राइट। 16 तारीख को मैं गोवा में हूँ, राइट। देन आई एम इन बॉम्बे, 26th आई एम इन अहमदाबाद। व्हेन पीपल कॉल मी, आई कांट टेल देम अपनी ऑडियंस को तुम तैयार करा के रखना क्योंकि मैं आ रहा हूँ मेरी बात सुनने के लिए। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरी स्पीकर, एवरी ट्रेनर, ये उसका फर्ज है, उसकी ड्यूटी है, उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है, उसे अपनी ऑडियंस को तैयार करना है ताकि वो सुने, राइट। हाउ मेनी ऑफ यू सीन दिस? दिस इज अ फ्लैगशिप इवेंट कॉल्ड UCY, राइट। जस्ट लुक एट दिस नाउ, दिस इज, ये इसके अंदर अब ये देखो, लेट मी शो यू, ये सब एक्टिविटीज हैं जिनकी यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, जगहें बनाई गई हैं, like this. We just delivered an event called Social Media Accelerator. We just delivered an event called Social Media Accelerator. तो मॉडल्स हैं, काम करने के तरीके हैं। जब हम लोगों के साथ ये सारी वर्कबुक्स को लेकर जाते हैं, राइट, आप जो ट्रेन द ट्रेनर के लिए आएंगे मेरे पास में, आई मीन व्हाट डू आई टेल यू माय फ्रेंड्स, आई मीन जो 60-70 पेज की वो किताब है, एक एक स्पीच को इवैल्यूएट किया जाता है। एंड आई हैव सीन पीपल जो डे 1 को आते हैं, उनको 100 में से पहली स्पीच को वो स्कोर देते हैं, तो स्कोर पे नंबर आते हैं 30, 35, 40। तीसरे दिन जब वो लौटते हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग और ट्रेन द ट्रेनर वर्कशॉप के बाद जब वो लौटते हैं, तो अपना उनका खुद का जो स्कोर रहता है, स्कोर गोज अप टू 70, 80, 85, 75, लाइक दैट। आई मीन आपको लोगों को गेम्स के साथ, एक्टिविटीज के साथ, फॉर्मेट्स के साथ, मॉडल्स के साथ सब देकर भेजना होता है, राइट। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, अगर आप में से कोई मेरी लाइव इवेंट में आज से पहले कभी आया हो तो आप जानते हैं ये वाली बात। डे 1 पे जब आप आए, आप अपना सेल्फी खींचिए, अपना खुद के फोन में सेल्फी लीजिए, और डे 3 पे जब आप लौट के जाएं फिर से अपना सेल्फी लीजिएगा। यू विल सी इट ऑन योर फेस, द ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज so powerful, you know, and how it comes because of all these 9 points that I am sharing with you one by, right? तो 5 मैंने बता दिए। Now we'll go to the 6th one, right? Are you ready? Fantastic. 6th one is all the time rapport with your audience. You know, you should be with your audience. आपने कभी किसी ऑर्केस्ट्रा को बजते हुए देखा होगा, तो उसमें एक इंसान होता है, वो ऐसे ऐसे कर रहा होता है यार, और शायद करीब 40, 50, 100 या 200 लोग होते हैं अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ, वैसे करेगा। और वो जो 150 लोग बजा रहे हैं अपना इंस्ट्रूमेंट, वो अलग तरह से बजाएंगे। आई मीन इट्स अ फ्लो। और वो 140 लोग
140 नहीं होते हैं, वो एक होते हैं. You know, that's how, you know, like this, I mean, it just happens. अगर आप में से कुछ लोग UCY में आए हो, तो जब हम लोग 2000 लोग साथ में मेडिटेशन करते हैं, 2000 लोग जब साथ में डांस करते हैं. पिछले UCY में हमारे 2 टीवी टूट गए, 1-1 लाख रुपए का एक प्रोजेक्टर था. जब हमने लोगों से लास्ट में ये कहा कि आइए मिलकर डांस करते हैं, लोग अपने पूरे स्टेडियम से लोग उस स्टेज के आसपास आ गए, और वो स्टेज के पास हमारे 2 बड़े बड़े LED टीवीज रखे थे जिसमें हमारी प्रेजेंटेशन चलती थी, हमारी टाइमिंग के क्लॉक्स चलते थे, वो दोनों टूट गए. आई हैड टू पे 2 लाख रुपीस इन लास्ट UCY जस्ट. बट यू नो, मैं और मेरी ऑडियंस हम एक हो जाते हैं. 2000 लोग एक थे. अगले UCY में वी आर प्लानिंग 5000 पीपल, एंड दिस 5000 पीपल विल बी वन बिकॉज स्पीकर का अपने ऑडियंस से रैपो है, हमारे दिल जुड़ जाते हैं. जब आपका दिल जुड़ गया ना, then magic happens, my friends. You know, then transformation happens. फिर से बोल रहा हूँ, आप बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आपको पैसे बोलने के नहीं मिलते हैं, आपको पैसे रिजल्ट्स के मिलते हैं. How many of you agree with this point? Just give me a yes on comment in the chat. मैं आपने एक बिजनेस प्रेजेंटेशन किया, आपको सेल चाहिए, यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि सामने वाला ये बोले कितना अच्छा बोलते हो आप. यू नो, आप और मैं, हम दोनों वो स्टेज पार कर चुके हैं जब कोई हमें ऐसे बोले कि नो आप बहुत अच्छा बोलते हैं. अच्छा बोलते हैं इज ऑल राइट. द गेम इज नॉट अच्छा बोलना और खराब बोलना. द गेम इज वेदर आई क्लोज द सेल और नो, वेदर आई क्लोज द डील और नो, इम्पैक्ट हुआ या नहीं हुआ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के विजन के साथ लोग जुड़े या नहीं जुड़े. दैट इज द गेम, माय डियर फ्रेंड. So you need to build a rapport with your audience all the time. You need to maintain eye contact with people. You know, आपको कभी स्टेज के ऊपर खड़े रहकर बात करिए, कभी नीचे ऑडियंस में आ जाइए. आपको मूव कैसे करना है स्टेज पे, स्टेज के नीचे, स्टेज के पीछे, दाएं बाएं, you know, all that movement, eye contact, and not only eye contact, moving eye contact with everybody in the room. ये सब आप जब साथ में करते हैं, then you are able to deliver an amazing event, right? So you need, this is number 6. A lot of NLP techniques are there to build rapport, right? So you can learn that also. Number 7, your own energy and enthusiasm. इसके बारे में मैं आपसे क्या कहूँ, right? आप चाहते हैं लोग आपकी बात, आप चाहते हैं पूरा सेशन जोश से भरा हो, तो जोश की शुरुआत तो तुमसे होगी ना मेरे दोस्त. You are the one who are responsible for building that or starting that fire, that excitement. वो जो जोश है वो आपको लेके आना है. और एज ए स्पीकर अगर आप खुद एक्साइटेड नहीं है, तो फिर आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी ऑडियंस सामने से एक्साइटेड होगी. सो माय रूल इज वेरी सिंपल. लेट मी पुट इट अप फॉर यू रिगार्डिंग एक्साइटमेंट. Either be excited about an event or don't do it at all. अगर आप किसी इवेंट को करने के लिए एक्साइटेड नहीं हो ना, और आपको लग रहा है ये पेन है, क्यों करूं, शुड आई डू इट और शुडंट आई डू इट, अगर ये सब सवाल हैं और तुम्हारे अंदर से आवाज नहीं आ रही, फायर नहीं आ रही है, देन डोंट डू द इवेंट. हाँ, ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने बोला था कि मैं 4 जुलाई शाम को 7 बजे इवेंट करूंगा, 7 बजे के 6:30 तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर से आवाज नहीं आ रही. दैट आवाज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट. My point is, if you committed to an event, you committed to an event. That you cannot, then you cannot go back. But otherwise, if you have a choice, मतलब yes करने से पहले decide करो यार उस event में जाना है या नहीं जाना है. और जाना है ना अगर, तो फिर fight मारनी है अपने को और जान लड़ानी है, और इस event के अंदर में अपना सब कुछ दाव पे लगा देना. Like वैसा, like give it everything you have got and go there with joy, happiness, enthusiasm, and excitement. Right? Number 8, this is very powerful. Use tools. Use tools, right? आपकी स्पीच की इफेक्टिवनेस को बेहतर करने के लिए आप टूल्स का यूज कर सकते हैं. लाइक पावर पॉइंट. कुछ बातें मैं चाहता तो बिना पावर पॉइंट के भी, या बिना आपको ये पावर पॉइंट स्लाइड्स दिखाए भी, तो मैं बोल सकता हूँ ये सारी बातें. I'll just say this, it will be like this, नॉन स्टॉप मैं बोलता रहूंगा. लेकिन 2 फायदे हो रहे हैं देखो पावर पॉइंट से. एक, अगर मेरी बात आपको, किसी को अगर पूरी बात कहीं समझ नहीं आई या कहीं कोई बात मिस हो गई, तो आप वो लिखा हुआ देख सकते हैं. सेकंड, जब मैं ये ट्रांजिशन करता हूँ, कभी मैं पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ, कभी मैं स्क्रीन शेयर को बंद कर दे रहा हूँ और मैं सीधी आपसे बात कर ले रहा हूँ, इन दोनों की ट्रांजिशन के बीच में ना ये जो मोमेंट है, अब मैं स्टेज पे होता तो कभी लेफ्ट जा सकता हूँ, कभी राइट जा सकता हूँ, बट अगर मैं ऑनलाइन हूँ आपके साथ, तो ये जो पीपीटी है, कभी ये स्लाइड आ रही है, कभी ये पॉइंट, ये सारे एक साथ भी आ सकते थे ना, ये सारे पॉइंट्स एक साथ भी आ सकते थे.
बट एक एक पॉइंट फ्लैश कर रहे हैं हम आपके पास. Why I'm using these animations? Why sometimes I use PPT, sometimes I don't use PPT. ये जो हमारे जो aids हैं ना, all these tools like PowerPoint, video, audio, ये presentation में जान डाल देते. और आप कहीं पे भी कमाल की अगर डिलीवरी करना चाहते हैं तो फिर आपको ये सारी चीजें जोड़नी पड़ती हैं. तब जाकर गेम्स होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, टूल्स आप यूज करते हैं, फिर आपकी स्पीच कमाल की बनती है. मैं आपको दिखाता हूँ. Let me share with you 1 second why our events become transformative, right? क्यों हमारे इवेंट में लोगों को बेहतरीन बेमिसाल परिणाम मिलते हैं. अब आप देखना, जो जो मैंने आपको बताया ना, ये मैं आपको उसका मैं अब आपको लाइव डेमो देता हूँ, राइट? तो 5 मिनट मुझे दीजिए अब, और हम एक एक करके देखिए, एक एक चीज को सुनते और समझते हैं. फिर ये लाइव मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको मैं आपको लाइव दिखाता हूँ. one. Just listen to this. ये देखिए, वहां पे हमने अब एक सेटअप बनाया है. जब आप ट्रेन द ट्रेनर में आएंगे आपको ये सेम मिलेगा. पब्लिक स्पीकिंग में आएंगे ये सेम मिलेगा. माहौल है, टीम्स हैं, एक्टिविटीज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, लोग स्कोर कर रहे हैं, कुछ लोग स्कोरिंग कर रहे हैं, कुछ लोग स्पीच दे रहे हैं, कुछ लोग ऑडियंस में बैठे हैं, कुछ लोग जजेस हैं. कैन यू सी दैट? व्हेन यू डू यू अब पब्लिक स्पीकिंग की वर्कशॉप आप करने जा रहे हैं, आपका काम है लोगों को कमाल का पब्लिक स्पीकर बनाना. अगर वो आपके साथ 3 दिन में 10-10, 12-12 बार स्टेज पे नहीं जाएंगे तो फिर सीखेंगे कैसे? जस्ट लुक एट दिस वन मोर. लेट मी शेयर विद यू few more. See this. Before people get on stage, we need to build their emotional state. जैसे उनको हाइप अप करना पड़ता है, आपको उनको पेप अप करना पड़ता है, then they are ready to perform at their best. Great delivery is not a matter of chance. और आप ये नहीं सोच सकते कि अपने आप हो जाएगा, देखते हैं, करते हैं. No, you need to prepare for it. Each and every activity you need to prepare for. Now these people, they have never done this before. अब वो आते हैं, बात करते हैं, कभी पहले 4-4 लोगों के सामने बात करते हैं. शाम को फिर जैमिंग सेशंस होते हैं, वहां पे लोग 20-20 लोगों के सामने बात करते हैं. फिर 100 लोगों के सामने, 150 लोगों के सामने. जस्ट लुक एट दिस. जो आपको डिलीवर करना है ना, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उस प्रोग्राम से रिलेटेड, उसके हिसाब से आपको पूरी तैयारी करनी है. गेम्स, एक्टिविटीज, रैपो, इमोशनल स्टेट, एनर्जी, एंथुजियाज्म, ऑल दिस थिंग्स वन बाय वन. और आपको ये मास्टरी करनी है धीरे धीरे. Let me show you some more. Look at this. अब हमारी कम्युनिकेशन का एक अहम हिस्सा हो गया है वीडियो मेकिंग. अब मैंने ये सिखा दिया वीडियो कैसे बनाते हैं, दैट इज नॉट द पॉइंट. पॉइंट इज, अगर आप मेरी 2 दिन की वर्कशॉप में आते हैं तो 4 से 5 वीडियोस बनेंगे, फीडबैक्स होंगी, और हम उन वीडियोस के अनुसार काम करेंगे. जस्ट लुक एट दिस. एवरीबडी मेकिंग वीडियोस, देयर ओन वीडियोस. आप बातों से नहीं सीखते हैं. बातें तो मैं यूट्यूब पे कर सकता हूँ, आपको एक बुक दे सकता हूँ, ऑनलाइन कोर्स दे सकता हूँ. बट व्हेन यू आर विद मी ऑन अ लाइव वर्कशॉप, अगर आप देख पाएंगे, जितना हॉल हमें चाहिए होता है उससे 3 गुना बड़े हॉल का हम पैसा देते हैं. व्हाई? मेरे को ये हॉल चाहिए नहीं, बट आई पे मनी. मेरे को हॉल चाहिए एक, मैं पैसे देता हूँ 3 हॉल के. व्हाई आई डू दैट? बिकॉज we need to give you opportunity to operate, to perform, to play games, to do all that. And when you are committed for that now, then things happen, and then transformation happens. फिर लोग, और जब लोग हाथ से करने लगते हैं फिर लोगों को परिणाम मिलने लगते हैं. तो इन सारी चीजों को आपको गहराई से समझना है. Now, results are not automatic, my friends. Results have to be designed. Just look at this one more. We personally evaluate every person where they are making mistake. ये particular session है, इसमें हम voice modulation check कर रहे हैं. वॉइस और स्पीच को हम चेक कर रहे हैं कि तेज बोल रहे हैं, धीरे बोल रहे हैं, मॉड्यूलेशन कैसा है. वी आर चेकिंग ऑल दैट. Let's look at this. Some more practice, some more. ये जो रिहर्सल की मैंने आपसे बात करी,
you cannot leave things to chance. You need to make people do it. और लोग करते नहीं, आपको करवाना होता है, आपको उस तरह। और ये आप कब करेंगे? मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया, यू नीड टू अर्न ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी फ्रॉम पीपल। ये सारे वीडियोस जो मैंने आपको अभी दिखाए, आप जैसे जैसे मेरी पूरी जो मैंने आज आपको सिखाया, अगर आप उसको डिटेल में समझेंगे, सो देन मैंने जो आपको सिखाया एक्चुअली हम वो सेम चीज करते हैं। नाउ लुक एट दिस। अब ये दो लोग कर रहे हैं, 2 people, teams of 2, they are giving feedbacks to each other, like 5, 6, 8 rehearsal, then people give feedback to each other, and then when they go back in the evening, उनको homework दिया जाएगा, then you see that magic happens, transformation happens. Look at this. This is like introduction round है ये. People don't know how to introduce themselves. तो जब आप गेम्स के साथ, एक्टिविटीज के साथ, अब मैं आखिरी वाले पॉइंट पे आ गया। अब आप इन 8 बातों को जो मैंने आपको बताया वो आप समझ पाएंगे। अब मैं 8 के 8 पॉइंट्स आपको रिवाइज कराता हूँ, देखो। और अगर आप ठीक से समझेंगे तो अब मेरे लास्ट 9th पॉइंट पे फिर मैं आपको लेके जाऊंगा। पहला, आपने तैयारी की, रियल वैल्यू एडिंग कंटेंट। जब तक कंटेंट नहीं होता तो आपकी तैयारी नहीं बनती है, राइट? सो यू नीड टू प्रिपेयर योर कंटेंट वेल। नंबर 2, रिहर्सल्स। आप अपनी रिहर्सल्स करें और हम लोगों से रिहर्सल करवा रहे हैं, आपने देखा होगा। थर्ड इज यू नीड टू अर्न ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी फ्रॉम योर ऑडियंस, बहुत जरूरी है। नंबर 4, आपको अपनी ऑडियंस की एंगेजमेंट को ऑल द टाइम गेज करना है। हाउ आर दे परफॉर्मिंग, आई मीन उनकी अटेंटिवनेस, इंटरेस्ट, क्वेश्चंस, क्लैपिंग, मूवमेंट, आईज, एवरीथिंग। नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके मैंने आपको वीडियोस दिखाए अभी, गेम्स एंड एक्टिविटीज। Games and activities will install things inside them. Some of you are asking, what is NLP? NLP is neuro linguistic programming. आपके बिहेवियर में, आपकी हैबिट्स में, एक्शंस में जल्दी बदलाव कैसे लाया जाए, आपके बिलीफ्स में जल्दी बदलाव कैसे लाया जाए, उसके लिए एक साइंस है जिसका मैं मास्टर हूँ पिछले करीब 8 सालों से। आई एम ए मास्टर इंटरनेशनल प्रैक्टिशनर ऑफ NLP. सो जनरली वी डोंट टॉक मच अबाउट इट, जनरली हम उसकी एप्लीकेशन बताते हैं, बट दिस टाइम इन ट्रेन द ट्रेनर वर्कशॉप जो हम अगस्त में करने वाले हैं, अगर आप एक कमाल के स्पीकर, ट्रेनर और लीडर बनना चाहते हैं, दिस टाइम वी विल बी टीचिंग लॉट ऑफ NLP stuff also so that you can use it. So number 5 is game and activities. Number 6 is build rapport. All the time you need to build a rapport with your audience. Number 7 is energy and enthusiasm. It's very important. Number 8 is tools, PowerPoint, presentations, videos, audios, GIFs and posters. And number 9, my all-time favorite. Let me take you to point number 9. हमेशा अपनी ऑडियंस को वाव करने के लिए काम करें। Always work with an objective to wow your audience. कोई भी वाव कब फील करता है? जब उसे उम्मीद से ज्यादा मिलता है। So that's the only way to explain wow. I mean, that's the only thing I know about wow. जिसे आप वाव करवाना चाहते हो, जिसे आप वाव फील करवाना चाहते हो, उसे आप वाव तब फील करवा पाएंगे जब आप उसके बारे में मैक्सिमम जानकारी रखते हो कि वो करता क्या है, उसे चाहिए क्या, इस इवेंट में क्यों आया है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, कहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है, और कैसे हम उसकी लाइफ में सक्सेस को आसान बना सकते हैं, प्रॉब्लम्स को जल्दी हटा सकते हैं। सो जब भी आप किसी इवेंट के लिए जाएं, learn as much as you can about your audience. It's number 1, right? Number 2, you need to be dressed appropriately. पार्टी के लिए अलग ड्रेस होती है, मंदिर के लिए, पूजा के लिए अलग होती है, शायद सोने के लिए अलग ड्रेस है, शादी के लिए अलग ड्रेस है, काम के लिए अलग ड्रेस है, इवनिंग आउटिंग के लिए अलग ड्रेस है। सो यू नीड टू बी ड्रेस्ड एप्रोप्रिएटली। आप किसी कॉलेज में टॉक देने के लिए जा रहे हैं, अलग है, किसी के घर पे बात करने के लिए जा रहे हैं, यू नीड टू बी ड्रेस्ड डिफरेंटली, और किसी सेमिनार के लिए जा रहे हैं तो अलग होगा, शायद वर्किंग प्रोफेशनल से बात करने के लिए किसी कॉर्पोरेट में जा रहे हैं, शायद यू नीड टू बी ड्रेस्ड डिफरेंटली। सो ड्रेस एप्रोप्रिएटली। आपको उस लैंग्वेज में बात करनी चाहिए जिस लैंग्वेज में आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, राइट? यू नीड टू टॉक इन द लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, लेकिन जिस ऑडियंस के साथ में हूँ उनको इंग्लिश कंफर्टेबल, वो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं वहां पे अपनी इंग्लिश से लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं गया हूँ, मैं लोगों को मेरा मैसेज डिलीवर करने के लिए गया हूँ। प्लीज ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। सो
जो भी आप कहानियां उन्हें बताते हैं, जो एग्जाम्पल्स आप देते हैं, वो एग्जाम्पल्स वैसे वाले होने चाहिए जो एग्जाम्पल्स को वो दिल से समझ पाए, रिलेट कर पाए, उनकी लाइफ से मिले। स्टूडेंट्स को जो एग्जाम्पल आप देंगे वो अलग है। 40 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर मैनेजर्स को जो आप एग्जाम्पल्स और स्टोरीज देंगे वो अलग है। सो यू नीड टू गिव योर एग्जाम्पल्स एंड स्टोरीज अप्रोप्रिएटली एंड गिव मोर देन व्हाट दे एक्सपेक्ट। ये हमेशा करिए, ये लाइफ का नियम बना लीजिए। ये मैंने मेरी नानी से सीखा था, और मेरी नानी से इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं बोलती थी, लेकिन मैंने इसको नाम दिया है पावर ऑफ एक्स्ट्रा। पावर ऑफ एक्स्ट्रा क्या है? ये जीवन का सिद्धांत बना लीजिए आप। आपको जिंदगी में वो सब करना चाहिए जो करने की आपसे उम्मीद की जाती है, और उसके बाद करना चाहिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो आप वो करें जो करने की उम्मीद की जाती है, फिर करें थोड़ा सा एक्स्ट्रा। अगर आप लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस में, बिजनेस में, क्लाइंट्स के साथ, इफ यू make this power of extra a rule of your life, I mean, you will be delighted. You will never be, what do you call, short of business. You will always have more business, more clients coming in for you. So this is number 9, right? So ये 9 चीजें थी, जल्दी से आपको फिर से रिवाइज करा। Okay, for some people who have not, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये हमारे UCY इवेंट की है। Again I'm saying, great speakers, leaders and trainers, they are not born, they are made through constant practice, लगातार, right? So good speech is called good when your audience gets the message, number 1. Number 2, आप जिंदगी में कोई भी हैं, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, अपना पैसा और टाइम इन्वेस्ट करिए और इन स्किल्स को डेवलप करिए। आप इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक इंजीनियर्स की टीम लीड करनी है और कंपनी में जनरल मैनेजर बनना है, देन, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप लेकिन आप CFO बनना चाहते हैं, आप अच्छे इंजीनियर हैं लेकिन आप अपनी कंपनी के CTO बनना चाहते हैं, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, तो इस सारी ग्रोथ के लिए आपको चाहिए पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों के लिए, आप एक दिन इस बिजनेस में सरवाइव नहीं कर सकते हैं, इतना कंपटीशन है इस बिजनेस में। अगर आप या आपकी टीम में कमाल के स्पीकर, लीडर, ट्रेनर्स, कम्युनिकेटर्स नहीं है तो इट्स एन एसेंशियल स्किल। थर्ड इज इट्स अ लर्नेबल स्किल। सो ऑल ग्रेट स्पीकर्स, दे हैव नॉट बीन बोर्न, दे हैव बीन ट्रेन्ड, राइट? तो 9 चीजें जो मैंने सीखी हैं वो आपके साथ शेयर की हैं। पहला, रियल वैल्यू एडिंग कंटेंट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। यू नीड टू हैव, जब भी आप बात करने जाएं, स्पीच करने जाएं, यू नीड टू डिलीवर रियल वैल्यू एडिंग कंटेंट। नंबर 2, रिहर्सल, 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 रिहर्सल करिए जितना कर पाए और फिर करिए थोड़ा सा और रिहर्सल। नंबर 3, अर्न ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ योर ऑडियंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4, आपकी स्पीच से ऑडियंस किस तरह से एंगेज और पार्टिसिपेट कर रही है उसको आप all the time keep judging that, keep gauge that. Then number 5, very simple, very powerful, games and activities, you must deliver that. Games and activities डिजाइन करिए ताकि आप कमाल के परिणाम निकाल पाए। और रैपो बिल्डिंग विद योर ऑडियंस, आप और आपकी ऑडियंस दिल से जुड़े रहेंगे ना जब लोग, तो परिणाम कमाल के आते हैं। एंड वी आर हियर नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, बट वी आर हियर फॉर रिजल्ट्स। Number 7, your own energy and enthusiasm. Number 8, use tools. Number 9, wow your audience, right? I have something very special to discuss with all of you now for next maybe 5-10 minutes, right? About public speaking itself, public speaking training, leadership, coaching, right? देखिए रॉबर्ट मोमेंट ये बोलते हैं, public speaking skills are essential key to achieving career advancement and success. Tom Peters, public speaking is a skill that can be studied, polished, perfected. ना सिर्फ आप इसमें बेहतर हो सकते हैं बल्कि आप इसमें कमाल की बेहतरी हासिल कर सकते हैं, कमाल की ग्रोथ और परफेक्शन और एक्सीलेंस लेके आ सकते हैं, जिससे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। फिर सबको डर लगता है, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग के डर को हटाया जा सकता है अगर आप सही टिप्स, स्किल्स और स्ट्रैटेजीज को सीख गए तो। और तब ये कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा स्किल है जो आप सीख सकते हैं। ये बिल्कुल साइकिल चलाने जैसा है, टाइपिंग करने जैसा है, स्विमिंग करने जैसा है।
अगर आपने पब्लिक स्पीकिंग को, कम्युनिकेशन को बेहतर बना लिया, तो ये आपकी जिंदगी के हर हिस्से की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकता है. इट्स सो इम्पोर्टेंट, राइट? 1 घंटा की तैयारी लगती है 1 मिनट की प्रेजेंटेशन के लिए. मेरी जिंदगी में जिस भी फील्ड में मैंने जब जहां भी कामयाबी हासिल की, I cleared my CAT exams and I did MBA from 16th best MBA college in India. मैंने जॉब किया, 25 साल की उम्र में I became the youngest regional manager in the history of my company. मैंने जो रिकॉर्ड्स बनाए सेल्स में मेरे 4 सालों के करियर के दौरान, कॉर्पोरेट करियर में, they were all because of this skill, right? अगर आप मेरी जर्नी देखेंगे तो I was born in a village. My mom, dad, they were into government jobs. ये मेरा स्कूल है, मेरा पहला स्कूल मेरे गांव में था, राइट? पेड़ के नीचे हमारी क्लास लगा करती थी, हिंदी मीडियम गवर्नमेंट रन स्कूल वाज देयर. टिल क्लास 12th I was in government schools, हिंदी मीडियम schools. 10th क्लास में मेरे स्कूल की फीस होती थी 11 रुपए पर मंथ. Into 12 is 132 rupees per month. I mean, so that's how that kind of schooling I got a job, और 4 साल मैंने जॉब किया. लेकिन जॉब में जब मैंने राइज किया, it's only because I always worked on my improving my communication skills, my public speaking, my leadership. वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीडर से, ट्रेनर से मैंने जाकर सीखा है. लाइक almost 1 crore probably I invested on my own training, right, on developing myself. Or somebody who has done graduation in Hindi medium, I have now 4 books in 9 languages, right? If you go to my YouTube, we have 26 crore views, right? 260 million views from 150 countries on YouTube, Instagram and all that. Been traveled to 30 countries, been covered in so many magazines and newspapers, have got so many awards. Already I've been a TEDx speaker, being a Josh Talk speaker. I'm a brand representative of eCell of IIT Bombay. But whatever happened, all that is because आज भी मैं लगातार काम करता हूँ मेरी पब्लिक स्पीकिंग को बेहतर करने में, लीडरशिप को बेहतर करने में, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर. Now, written communication, oral communication, speaking, everything is related, my friend. Just look at these people. There's an award called Golden Book Award. People like Priyanka Chopra, Sadhguru, Sudha Murthy, Gaur Gopal Das, Grover, Harry Potter की जो author हैं, Deepak Chopra, J.K. Rowling. I also got the same award that these people have got, right? So in 2023. Now, we did this event called UCY. 2,000 people from 11 different countries, they came for this event. So all this is possible, my friends. I mean, very simply because of this one skill called public speaking. Right? So that's it for today, for today's session. For those of you who want to learn this more, और जिन्हें ऐसा दिल से लगता है कि यार पब्लिक स्पीकिंग को अगर अंदर तक उतारना है और इस के अंदर जाना है, right, then we have a very, very powerful, very special, brand new event coming up now. We call that event Train the Trainer. So it's a very powerful event, amazing event, 3 days event. साल में एक बार होने वाला event है ये, और ये अब होने वाला है 3 दिन का event. 8, 9, 10 अगस्त को we are doing this event in Delhi NCR. Right? So आपने पिछले पब्लिक स्पीकिंग के वीडियोस मैंने आपको दिखा दिए थे. So पिछली बार वाला इवेंट 2 दिन का इवेंट था. This time we are doing it for 3 days. Right? 3 दिन में आप क्या सीखेंगे और हम क्या करेंगे? I'll just quickly share with you. Number 1, you will become a great public speaker. We'll teach you everything about public speaking. Then most important is you will become a leader. जिंदगी के किसी भी फील्ड में टॉप पे जाना है तो आपको लीडर बनना पड़ेगा. चाहे आप बाहुबली देख लें, चाहे आप ट्रॉय देख लें, चाहे आप पॉलिटिक्स देखें, चाहे आप कॉर्पोरेट्स देखें, आपको अगर सक्सेस चाहिए, मनी, पॉलिटिकल, सोशल, एनीवेयर, you need power, you need prestige, you need success, you need money, then my friend you need to be a leader. It's very simple. Without leadership nothing is possible. If you come for Train the Trainer workshop, these are the 2 things that you will get the most. You will become a great public speaker, you will become a charismatic leader. और एक और बात बोलता हूँ, 8 तारीख सुबह आते ही 10 बजे आप पहली स्पीच देंगे, उसकी हम स्कोरिंग करेंगे. आप सब लोग कम से कम 10 से 12 स्पीच देकर जाएंगे और 8, 9, 10 10th नाइट
you will see an improvement in your own videos, your own speech, your own score. उधर का उधर, right? 3 दिन के अंदर में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन उसके बाद होगा वो बाद में होता रहेगा. But in 3 days we will do this special, transformation for you. NLP की जो चीजें आपके लिए relevant और जरूरी हैं, that will teach you, will help you become a great coach and a great trainer also. But in 3 दिन में हम क्या-क्या cover करेंगे? I mean, we'll be doing live interactive event है. 10 से 12 speeches आप सब देंगे ही देंगे. जितने भी लोग आएंगे 10 से 12 speeches. उस तरह का सेटअप हम बना के रखते हैं ताकि हर इंसान वहां स्पीच दे. स्पीच को डिजाइन कैसे करते हैं, अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को, स्पीचेस को डिजाइन कैसे किया जाता है, फिर उसको डिलीवर कैसे करते हैं, गेम्स कैसे आप अपनी डिजाइन करेंगे, किस तरह की गेम्स खिलवाई जा सकती हैं, एवरीथिंग विल कवर. प्लानिंग से लेके लाइक A to Z एवरीथिंग. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कम्युनिकेशन पे काम करेंगे. आपको Q&A करने का मौका मिलेगा. अगर कोई नेटवर्क मार्केटर्स हैं, आपके लिए ये आप समझिए मस्ट अटेंड काइंड ऑफ एन इवेंट है. आपकी टीम में आप इंडिपेंडेंट लीडर्स बना पाएंगे. जो काम 2-2, 3-3 सालों में नहीं होता वो आप 3 दिन में कर पाएंगे इफ यू यूज दिस इवेंट प्रॉपर्ली. राइट? एम्प्लॉइज, अगर आप में से कोई जॉब करते हैं, इफ यू वांट टू लीड अ टीम, यू वांट प्रमोशन इन योर करियर, दिस इज द वर्कशॉप फॉर यू. टीचर्स, प्रोफेसर्स, दिस इज द वर्कशॉप फॉर यू. कोचेस के लिए ये जरूरी है. इंश्योरेंस एडवाइजर, रियल एस्टेट एडवाइजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एनीबॉडी हु वांट टू बिकम अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर, दिस इज द इवेंट फॉर यू. You must come for this. 8, 9, 10 live event. And जब मैं UCY वगैरह करता हूँ तो we have like 2,000 people, 3,000 people. सबसे बात करना मुश्किल हो जाता है. लेकिन this is a event which is a small group kind of an event. Right? तो आपको मौका मिलेगा मुझसे पर्सनली, आपके कोई भी सवाल रहेंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं. There will be few other trainers also. Best of the best in their field, they will be with you. तो आप समझिए मैं आपका हाथ पकड़कर आप के सफर को, एक ग्रेट ट्रेनर, स्पीकर और लीडर बनने के सफर में जितना सफर आपका जल्दी तय करा पाऊं वो सब मैं वहां पे करवाने के लिए काम करूं. आपके पास एक ऐसी वर्कबुक होगी जिस वर्कबुक पे हम लोग साथ में काम करेंगे. स्पीचेस होंगी रात के लिए, आप जब होटल में अपने रूम में जाएंगे उसके लिए आपके पास में असाइनमेंट होंगे, होमवर्क्स होंगे. अलग अलग ग्रुप्स में हम लोग साथ में काम करेंगे. आप मेरे को बोलेंगे ऐसा, आप में से अगर किसी को डर लगता है, हेजिटेशन होती है, डाउट होता है, डिलीवरी में इफेक्टिवनेस नहीं है, लोग आपकी बात नहीं सुनते, इंपैक्ट नहीं आता, करिश्मा नहीं आता, इन्फ्लुएंस नहीं है, एवरीथिंग वी विल सॉल्व इन दोस 3 days. राइट? एंड पब्लिक स्पीकिंग की जब लोग वर्कशॉप करते हैं ना तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो लाइक इनॉर्मस. पीपल चार्ज एनी अमाउंट ऑफ मनी. राइट? लोग कितना भी अमाउंट इसके लिए चार्ज करते हैं. उदाहरण दूं आपको, just see this, 1 second. एक ट्रेनर है, इनकी वर्कशॉप मैंने भी अटेंड की थी, लेकिन नाउ ही इज अ 73-year-old एंड ट्रेनर है ये. इनका भी पब्लिक स्पीकिंग का एक इवेंट हो रहा है शिव खेरा साहब का. सेम चीजें सिखाने वाले हैं, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, ओपनिंग, कंटेंट, क्लोजर, Q&A, डेवलप योर स्टाइल, ओवरकम स्टेज फियर. राइट? बाय चांस ये भी 8, 9, 10 को हो रहा है और ये मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, तो जान पहचान है हमारी. तो इन्होंने भी मुझे बताया कि 8, 9, 10 को he wanted to, we had some kind of a collaboration, something going on, but I want to show you this. Let's look at the price here. 1,95,000 रुपए प्लस GST है. अगर आप पहले पे करते हैं तो 1,75,000 रुपए प्लस GST. सेम है. 8, 9, 10 अगस्त को एक इंस्टीट्यूशन है IIM नागपुर, वहां पे ये इवेंट हो रहा है. 8, 10 सेम डेट, 8, 9, 10 August. We are doing it in Delhi NCR. This event is happening in Nagpur. Cost is 1,95,000 रुपए प्लस GST. Right? But I really want to give you guys, serve you guys, और आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट हम क्या कर सकते हैं वो हम आपके लिए करना चाहते हैं. अगर आप अभी मेरी वेबसाइट पे जाएं तो आप इस इवेंट को बुक कर सकते हैं 35,388 रुपए, 35,388. But you are one of those people who have taken initiative to come to this event. जनरली हम इवेंट से 3-1 हफ्ते पहले इवेंट के रजिस्ट्रेशंस वगैरह बंद कर देते हैं.
क्योंकि हम फिर इवेंट की डिलीवरी पे लग जाते हैं। इवेंट है 8, 9, 10 अगस्त को। अगर मैं 7, 8 अगस्त तक इवेंट की टिकटें ही बेचता रहूंगा तो फिर मैं इवेंट में आपको क्वालिटी कब डिलीवर करूँ? तो जनरली एज ए पॉलिसी, इवेंट होने से 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, कई बार 1 महीना पहले हमारी कोशिश होती है कि जितना हमारा टारगेट था वो हम पूरा करें। इस इवेंट के लिए भी हमने हमारा 80-90% टारगेट पूरा कर लिया है। कुछ 10-20% सीट्स बाकी हैं। हम चाहते हैं वो सीट्स आज खत्म हो जाएं और या फिर मैक्सिमम कल खत्म हो जाएं, सो दैट वी स्टॉप द सेल्स ऑफ द टिकट्स एंड वी मूव फॉरवर्ड विद प्रिपरेशन फॉर दिस इवेंट। तो अगर आप चाहें तो जो टिकट अभी हमारी वेबसाइट पे 35,388 की है, अगर आप अभी इसे बुक करते हैं तो आपके लिए ये प्राइस है ओनली 24,990 प्लस GST। इस प्राइस में नाइट स्टे इंक्लूडेड नहीं है। 3 दिन का इवेंट है, मॉर्निंग की चाय है, लंच है, इवनिंग टी है, पूरा इवेंट है, वर्कबुक है, टूल्स हैं, बट नाइट अरेंजमेंट, योर डिनर एंड ऑल यू नीड टू मैनेज बाय योरसेल्फ। वो किसी भी इवेंट में ऐसे ही होता है। तो दिस, इफ यू बुक नाउ, मैंने आपके पास लिंक एक भेज दिया है, आप उस लिंक पर जाकर 24,990 प्लस GST में बुक कर सकते हैं। आप, अगर आपको ये प्राइस चाहिए तो आपको सिर्फ इसी लिंक पर जाकर बुक करना पड़ेगा। इफ यू गो टू आवर वेबसाइट, दिस विल नॉट बी अवेलेबल देयर। So this is the only place where this price is available, 24,990, because I respect you and मैं आपको अपना इंटरेस्ट साफ साफ बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ सेल्स वाला काम कल खत्म हो जाए और उसके बाद हम तैयारी पे लगे, एंड वी हैव समथिंग रियली अमेजिंग जिस पे मैं और मेरी टीम काम करना चाहते हैं। सो जो भी बची हुई टिकट्स हैं, हमारा पीस ऑफ माइंड, हम अपनी टिकट्स को सेल करके यहाँ से कंप्लीट करके, वी वांट टू गेट रेडी विद योर, आपकी वर्कबुक बनेगी। हर एक इंसान जो इस वर्कशॉप में आएगा उसको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, आपकी वर्कबुक, सर्टिफिकेट, एक्टिविटीज, वो सारी तैयारी हम अभी करनी शुरू कर देंगे। सो लिंक हमने आपको चैट में भेज दिया। वो लिंक कल 8-12 हुए ना, अभी कल 8 बजे तक वो लिंक एक्टिव रहेगा। उसके बाद वो लिंक काम नहीं करेगा। उसके बाद या तो आपको सीट्स नहीं मिल पाएंगी, या फिर अगर सीट्स मिलेंगी तो फिर वो सीट्स हमें उस रेट पे मिलेंगे जिस रेट पे वो सीट्स उस समय में अवेलेबल नहीं, राइट? सो anybody has got any doubts on whatever we have done in the session today, you can ask me now regarding train the trainer or regarding any of these things, whatever we have discussed. Okay, Srishti, I am giving, there's a team number. You speak to my team, we'll see how we can help you. Anybody has got any questions, you can ask me now. Really appreciate that. Thank you, Mahesh. Thank you, Jayesh, for all your appreciation, all your compliments. Thank you so much. Really happy. Okay, Devendra, you will be out of India, no problem. No, Sumantha, staying arrangement you have to do separately, but we can give you, जिस होटल में हम करते हैं उसके आसपास कुछ बहुत कमाल के ऑप्शंस हैं, जो आपको अच्छे बजट में वहां पे आप रहने का अरेंजमेंट कर सकते हैं। What is the age limit for the workshop? सुलोचना, जनरली 10-12 से नीचे वाले बच्चे हम रिकमेंड नहीं करते हैं, बट अदरवाइज एनीबडी कैन कम टू द वर्कशॉप। थैंक यू सो मच ब्रिजेश, सी यू देयर। ऑसम नितिश, हार्टी वेलकम टू दिस इवेंट आल्सो। हाय नवीन, गुजरात से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आई थिंक वी ऑलरेडी गॉट 75 पीपल कमिंग फ्रॉम गुजरात। 75 लोग मेरी जानकारी के हिसाब से 75 लोग के आसपास है। डोंट वरी नितेश, आप हमारी टीम से बात करिए, वी सी हाउ वी कैन मैनेज। स्वाति, हाँ मुझे मालूम है आप अपनी पूरी टीम के साथ आ रही हैं, बट वी शुड गेट 30-40 पीपल स्वाति, लाइक उसके बिना काम नहीं चलेगा। चिंतन, यू नो द टारगेट्स, दो चीजें मैंने आपको बोली थी चिंतन, आपको करके आना है और मुझसे मिलना है। थैंक यू खुशबू, माय प्लेजर, ऑल द बेस्ट। भूपेन बाग, ओके, यू कैन, भूपेन एक काम करो, आप मेरी टीम, क्या नंबर मैंने आपको दिया, प्रतीक आपसे बात करेंगे इस नंबर पे, आप अपनी चैलेंज या जो आप चाहते हैं वो बताइए, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। ऑसम चिंतन, ऑल द बेस्ट। अमित, माय प्लेजर अमित, वेरी हैप्पी टू बी ऑफ सर्विस टू यू गाइस। एक और चीज, अभी एक और लिंक मैं आपको भिजवा रहा हूं। ऑसम ज्योति, हार्डी वेलकम।
it's a booking link for 5,000 rupees. अगर आप में से किसी को लगता हो कि अभी इवेंट में 1 महीना है और आप पेमेंट का अरेंजमेंट करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ 5,000 रुपये अभी देंगे, हम आपका ये प्राइस लॉक कर देंगे 24,990। हमें मालूम है आपने कमिट किया है, तो फिर बाकी पेमेंट आप हमें दे ही देंगे इवेंट से पहले, दैट इज ऑल्सो नॉट ए प्रॉब्लम। हमारी तरफ से हम उस सीट को क्लोज मान लेते हैं और हम रजिस्ट्रेशन क्लोज कर पाएंगे और काम को आगे बढ़ा पाएंगे। तो आप में से अगर कोई चाहे और आपके पास अभी 24,990 प्लस जीएसटी नहीं है, तो आप 5,000 की पेमेंट देके अपनी सीट को रिजर्व करा सकते हैं, राइट? देन योर 24,990 प्लस जीएसटी विल बी लॉक्ड फॉर यू। Harsh, I understand your problem. No problem, my friend. You just speak to my team and we will see how best we can help you. कुछ ना कुछ जरूर करेंगे आपके लिए। भानु, आप जिस भी सेक्टर में बिजनेस करेंगी ना, आपको पब्लिक स्पीकिंग जरूर सीखनी चाहिए। जरूर सीखना चाहिए आपको, ये वर्कशॉप में जरूर आना चाहिए। बाकी सारे स्किल्स के साथ साथ ये बहुत जरूरी है। सुमंता, टोटल प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी? 1 मिनट सुमंता, हाँ, अगर मेरी टीम से कुछ सुन रहा है तो वो भी राइट, यू कैन ऑल्सो राइट। वंदना भट्ट, वेयर इज द इवेंट इन दिल्ली? वंदना, विद इन अ वीक विल लेट यू नो। ओके, थैंक यू सो मच। 29,488 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी, 29,488 इंक्लूडिंग जीएसटी। राघवेंद्र, नो प्रॉब्लम यार, वी विल, आप एक बार ही 5,000 से इवेंट की बुकिंग करा लीजिए, बाकी वी विल सी, we will try our level best to give you best possible support and cooperation. All right everyone, thank you so much for joining in. बहुत सारे लोगों से मैं किसी ना किसी इवेंट में आपसे जरूर मिलूंगा। दिल से दुआ है कि आप लोगों से जल्दी मुलाकात हो किसी ना किसी और प्लेटफॉर्म पे। दोनों लिंक्स आपके पास हैं और वो सब लोग जो ट्रेन द ट्रेनर वर्कशॉप में आ रहे हैं, हार्डी वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप लोगों से फेस टू फेस मिलने का मौका मिलेगा। ये 9 चीजें जो मैंने बताई, 9 की 9 को याद रखिए, इंप्लीमेंट करिए। और यू नो द बेस्ट पार्ट इज, इन सब पे एक साथ काम मत करें, 1, 2 या 3 को आप पकड़ें और उन तीनों के ऊपर में मेहनत करना शुरू करिए और उनको डेवलप करना शुरू करिए। आई एम वेरी श्योर यू गाइस विल डू मैजिक, राइट? आई एम 100% श्योर अबाउट, राइट? ऑसम सकीना, कीप शाइनिंग। एसके राज, डोंट वरी, जस्ट कॉल आवर टीम, वी विल सपोर्ट यू। जो हमसे बेस्ट हो पाएगा ना, एसके राज विल डू इट फॉर यू, राइट? अगर आप बात करेंगे ना, तो हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे आप सबके लिए। सो जस्ट कॉल आवर टीम। हर्ष, आपकी ट्रेनिंग करवानी हो तो हाउ टू कॉन्टैक्ट? सेम नंबर, वी हैव ओनली वन नंबर, 9990555038, so you can call on that number. Thank you so much guys, God bless you all. भगवान आपको असीमित कामयाबी दें, आप आसमान की ऊंचाइयां छुएं और आपका हर सपना पूरा हो, ऐसा मैं और मेरी पूरी टीम हम दुआ करते हैं और इसके लिए हम सुबह से शाम तक काम करते हैं। थैंक यू येलप्पा, सृष्टि, God bless you guys. हर्ष, right, keep sharing guys, love you all. आसमान की ऊंचाइयां छू लीजिए। I have one dream, I want to see all of you guys at the top. Thank you Manoj. Awesome, Manoj, Pamendra, Nitesh Kumar, love you too Srishti. All right, huh? Bye bye, take care, God bless you, thank you.